Hello, myself Anil Kumar from CIMAGE Group of Institutions. In this video, I am going to discuss about the import tariff. The import tariff means what? A tariff is a custom duty or tax levied on imports of merchandise goods. Most of the time, tariff is an ad valorem tariff. As I discussed in the previous videos, that ad valorem tariff, what does it mean? It's a specific tax that had been imposed by the government on the some particular kinds of the goods. In this way, the another types of the tariffs are also been there, and that is the another tariff that is been known as transit tariff. It is, what does it mean? ये transit tariff होता क्या है, इसको समझेंगे. It is imposed upon the goods originating in the foreign country and scheduled for a third country crossing the borders of the home country. और इसमें क्या होता है कि ट्रांजिट में क्या होता है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री को जाना होता है क्रॉसिंग द बॉर्डर्स ऑफ द होम कंट्री. फॉर इंस्टेंस, एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि if India imposes tariff on the goods that Bangladesh export to Nepal through the Indian territory, and this will be called as transit duty. अगर हम लोग इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि गुड्स को कहां से कहां तक पहुंचाना है, गुड्स दैट बांग्लादेश एक्सपोर्ट टू द नेपाल, बांग्लादेश से एक्सपोर्ट होकर के और नेपाल पहुंचा, लेकिन बीच में इंडिया के टेरिटरीज को उन्होंने उस गुड्स को ले जाने के लिए यूज किया और उसके लिए क्या किया गया, इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर ड्यूटीज इंपोज कर दिया, टैरिफ इंपोज कर दिया. एंड दिस टाइप ऑफ द टैरिफ दैट इज नोन एज ट्रांजिट ड्यूटीज. और इसमें जैसा कि हम लोग फिगर में देख पा रहे हैं, ठीक है ना, टैरिफ यहाँ पे ये ट्रांजिट क्रॉसिंग द कंट्रीज. Here from here export is going on and it is crossing by this way and it is reaching to the import. Now this any situation, किसी भी सिचुएशन में जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर रही है और बीच में कोई तीसरा कंट्री है, तो तीसरे कंट्री को ये पूरा अधिकार होता है कि वो उस पर टैक्सेस इंपोज करे. और इस तरह के टैक्सेस को हम लोग ट्रांजिट टैक्सेस बोलते हैं, ट्रांजिट ड्यूटीज बोलते हैं. Now, these all are the different kinds of the barriers that had been imposed to control the international trade in terms of export and import. Now, the advantages of the tariff barriers. Now, I am going to discuss under this video, also discuss one another topic, and that is known as the advantages of the tariff barriers. What all are the advantages of the tariff barriers? Advantages of the tariff barriers. There are various tariff barriers, advantages, and some of these advantages are as I am going to discuss. The tariff barriers act as a source of the government revenue. The great advantage of these barriers to increase the government revenue. It acts as an increasement in the revenue for the government. They encourages the domestic production growth. Now, as we had already been discussing the previous video, that to protect the domestic companies, to protect the domestic growth in terms of the production, in terms of any means from the international trade, the government always encourages the domestic production growth. What is the advantage of the tariff barriers? Once अगर बैरियर्स को हम लोग ना इम्पोज करें तो हमेशा डोमेस्टिक प्रोडक्शन सिस्टम हमारा क्या होगा, खतरे में रहे. लेकिन अगर टैरिफ को इम्पोज किया जाता है तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज किसके लिए जाता है, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ग्रोथ के लिए जाता है. टैरिफ बैरियर्स आर अ वे टू प्रिवेंट अनफेयर कंपटीशन इन इंटरनेशनल ट्रेड्स. और ये जो टैरिफ बैरियर इंपोज किया जाता है
इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि अनफेयर कंपटीशन, एक तरह से कहें तो अनफेयर कंपटीशन का मतलब ये है कि उनके पास उतनी सारी टेक्नोलॉजी, वो कोई भी मीन्स से हमें कंपटीशन कर सकते हैं, लेकिन इस अनफेयर कंपटीशन को रोकने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड में स्पेशली इन सारे बैरियर्स को यूज किया जाता है, और ये एक एडवांटेज देता है डोमेस्टिक कंपनी को इंटरनेशनल ट्रेड में। Now the another advantage, the tariff barriers may also be a starting point for international negotiation and agreements. और ये बैरियर्स एक तरह से रास्ता देता है किसके लिए, निगोशिएशन करने के लिए, निगोशिएशन अंडर द इंटरनेशनल एरेना, एग्रीमेंट्स करने के लिए। एक दूसरे के साथ अगर हम एग्रीमेंट्स करते हैं, अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ एग्रीमेंट करती है, तो उसमें ये टैरिफ बैरियर्स भी एक उपयोगी साबित होता है, क्योंकि बैरियर्स तभी हटेगा जब एक दूसरे के साथ एक कॉमन पॉइंट पे हमारा एग्रीमेंट होगा, सो दैट कि द इंटरनेशनल ट्रेड कुड बी फैसिलिटेटेड। Say for example, if you does not have an agreement with any other country, they might have imposed a different kind of the taxes, the tariffs and non-tariff barriers. Now, the non-tariff barriers. The non-tariff barriers are defined as non-tax measures adopted by nations governments to limit the import from foreign countries. Non-tariff barriers वो barriers होता है जो कि imports पे impose किया जाता है. This can be in the form of laws, policies, the practices, conditions, requirements, etc. and are specified by the government to restrict imports. इसमें कई तरह से हम लोग इंपोर्ट को रोक सकते हैं, लॉ के अनुसार, पॉलिसीज के अनुसार, प्रैक्टिसेस के अनुसार, कंडीशंस के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार। हमें अपने जरूरतों को देखते हुए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट पे हम बैरियर्स लगाते हैं। गवर्नमेंट इंपोज कर देती है, रेस्ट्रिक्ट कर देती है उस इंपोर्ट को, जिससे कि हमारे अगर डोमेस्टिक ग्रोथ को अगर कोई हानि हो रही है, तो उसको रोकने के लिए हम इंपोर्ट को बैरियर्स कर देते हैं, उसके ऊपर में टैक्स इंपोज कर देते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स। नाउ the example for the non-tariff barriers are import quotas, voluntary export restraints, import licensing, technical and administrative regulations, price control, foreign exchange regulations, the other formalities, quantity restrictions, and pre-shipment inspections and rules of origin. इन सारे माध्यम से हम लोग इंपोर्ट को क्या करते हैं, रोक सकते हैं, बैरियर्स कर सकते हैं, उनको इंपोज कर सकते हैं, उनको रोकने का काम किया जा सकता है। दे आर द नॉन टैरिफ मींस टू से दैट कि ये टैक्सेस के फॉर्म में नहीं होते हैं, नॉन टैक्सेस के फॉर्म में होते हैं। नॉन टैक्सेस होने का मतलब कि हम दूसरे मायने से हम उनको रोकने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कि उनको हम लोग लीगल तरीके से रोक सकते हैं। इंपोर्ट कोटास, उनके कोटास को, इंपोर्ट के कोटास को हम लोग लिमिट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम, कि आप इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। कोटास बना देते हैं हम। कोटा का मतलब कि फिक्स करना कि इतना ही वॉल्यूम आपका क्या होगा, इंपोर्ट के लिए अलाउड है, एंड बाकी सारे वॉल्यूम हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उनको जो मर्जी हो, जितनी चाहे वो इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट लाइसेंसिंग, हम लोग उनके लाइसेंसिंग को, इंपोर्ट लाइसेंस को हम डिसेबल कर देते हैं, हम उनको ये अलाउ नहीं करते हैं कि आप इंपोर्ट करें। अनदर वन, द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस के माध्यम से भी हम इंटरनेशनल ट्रेड्स में नॉन टैरिफ बैरियर्स को इंपोज करते हैं। एंड विद दिस आई एम कंक्लूडिंग दिस today's video. Hope you are able to understand the advantages, the different kind of the taxes in the form of the tariff barriers and in the form of the non-tariff barriers, and what all means about the non-tariff barriers and how the non-tariff barriers works out. And this is with this hope आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करें। थैंक यू सो मच।